आसनसोल लोकसभा केंद्र के भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह अहलुवालिया ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि आसनसोल में फॉल्स वोटिंग हुई, जिसका सीधा फायदा टीएमसी को मिला। इस पर हमने वरिष्ठ टीएमसी नेता वी शिवदासन दासू से बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बहुत पहले से ही वह कहते आए हैं कि आसनसोल में भाजपा का कोई संगठन नहीं है। ममता बनर्जी द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका सबको फायदा होता है। वहीं अभिषेक बनर्जी द्वारा संगठन को मजबूत करने का काम किया गया है। यही वजह है कि पूरे बंगाल के साथ साथ आसनसोल में भी टीएमसी को इतनी भारी सफलता मिली। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी को यह बात समझ में आ गई थी जब वह आसनसोल आए थे कि वहां वह जीतने वाले नहीं हैं और आज हारने के बाद इस तरह की बातें कर रहे हैं। दासू ने कहा कि यह बीजेपी का अंदरूनी मामला है, इसलिए उनको इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मीडिया में भाजपा के ही एक नेता द्वारा यह कहा गया था कि सुरेंद्र सिंह अहलुवालिया की वजह से भाजपा आसनसोल सहित बंगाल के 3 सीट हार गई। इससे यही बात पता चलती है कि भाजपा के बीच अंदरूनी समन्वय नहीं था। या तो भाजपा प्रत्याशी स्थानीय भाजपा नेताओं के साथ जुड़ नहीं पाए या फिर स्थानीय नेतृत्व सुरेंद्र सिंह अहलुवालिया को स्वीकार नहीं कर सका। उनके हारने की यही वजह रही और कोई वजह नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर भाजपा का कोई संगठन नहीं है। আমি তার জন্য ধন্যবাদ জানাই তাদেরকে যে তারা প্রায় 5,46,000 ভোট দিয়ে আমাকে আশীর্বাদ দিয়েছে। এই রাষ্ট্রীয় পর্ব 18th লোকসভায় আসানসোল লোকসভার একজন জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত বা নিজের জনসেবক নির্বাচিত করার একটা সুযোগ ছিল। সংবিধানের তত্ত্বাবধানে এই সুযোগের মাধ্যমে ভারতবর্ষের 543টা লোকসভা কেন্দ্র নিজের এলাকার প্রতিনিধি নির্বাচিত করেন। এই সুযোগটার সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করেছেন। আমি সবাইকে ধন্যবাদ দেই, যারা আমাকে ভোট দিয়েছে তাদেরকেও, যারা আমাকে ভোট দেয়নি তাদেরকেও, যারা আমার পোস্টার লাগিয়েছে তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই, যারা আমার পোস্টার ছিঁড়েছে তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই, যারা আমার পোলিং এজেন্টকে পোলিং কেন্দ্রে বুথ কেন্দ্রে বসার সহযোগিতা করেছে তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই, আর যারা তাদেরকে ধমক দিয়ে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই। এই ধন্যবাদটা কেন জানাই তার মূল কারণটা হচ্ছে যে সবাই এই রাষ্ট্রীয় পর্বে যোগদান করলেন। তাদের সংস্কার, তাদের সংস্কৃতি, তাদের পার্টির নীতি, তাদের পার্টির আইডিওলজির অনুসারে তারা তাকে অনুসরণ করে, তাদের নেতার নির্দেশ অনুসরণ করে তারা ব্যবহারটা করেছে। আসানসোল লোকসভার জনগণ তাতেই বুঝতে পারবে যে এই প্রতিনিধি নির্বাচনে তারা সঠিক ছিলেন না কিছু ভুল করেছে, সেটা আজকে বোঝানো যাবে না। আর যারা চুরি করেছে, আমি তো ভাবছিলাম সবাই পত্রকার বন্ধুরা যারা আমার ছায়া সঙ্গী ছিল তারাও বলল যে দাদা ডাকাতি হয় নাই, কিন্তু প্রক্সি ভোট পড়েছে। এটা সবাই বলেছে, প্রত্যেক পত্রকার বলেছে, প্রত্যেক দল, মানে যত দল নির্দল যেই যারা ছিল তারা সবাই এইটা স্বীকার করেছে যে প্রক্সি ভোট শাসক দল মেরেছে। আমরা আশা করেছিলাম কতটা মারতে থাকে। আপনি জানেন যে ফেব্রুয়ারি মাসে আমাদের পশ্চিম বাংলায় একটা পত্রপত্রিকায় একটা রিপোর্ট বেরোয় যে পশ্চিমবঙ্গের যে ভোটার লিস্ট আছে তার মধ্যে অনেক ভুয়া ভোটার আছে। এটা কোনো নতুন কথা নয়।
আপনি নিশ্চয়ই সেই ভিডিওটা দেখেছেন, যাতে যখন সোমনাথ চ্যাটার্জি স্পিকার ছিলেন আর আমাদের বর্তমান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী, উনি তখন সাংসদ ছিলেন, উনি তখন একটা রিপোর্ট নিয়ে পার্লামেন্টেই প্রশ্ন তুলতে চাইছিলেন যে কি এই ভুয়া ভোটারগুলোকে শেষ করা হবে। সোমনাথ বাবু ওনাকে অ্যালাউ করেননি বলতে, তখন উনি সমস্ত কাগজগুলো ছিঁড়ে ওনার টেবিলের উপরে ফেলে দিয়েছিলেন যে এই ভুয়া ভোট যতদিন থাকবে ততদিন পর্যন্ত কোনো দল কিছু করতে পারবে না। देखिए, हम कुछ दिन पहले भी एटो बात बोला था, एटो वोट में जीतने के लिए संगठन का जरूरत है। कुछ कुछ जगह ऐसे भी होता है बिना संगठन का भी जीत होता है और संगठन का हार भी होता है। और बीजेपी के अंदर में हम लोग आसनसोल में देखा संगठन बोल के कुछ नहीं। और तृणमूल कांग्रेस जो ममता दी पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री होने के बाद जो पश्चिम बंगाल का जो डेवलपमेंट किया है, ये डेवलपमेंट का समर्थन में साधारण जनता था। और ये छोड़ के जो हमारा जो संगठन है इसको मजबूत करने के लिए हमारे जो नेता अभिषेक बनर्जी जो प्रयास किया इतना दिन से, जो उसका फल हम लोग को मिला है। और वो जो आरोप इसलिए लगाता है उसको पहले देखना चाहिए था। अपना जिस समय वो आया था उसी समय वो समझ गया था हम यहाँ जीतने नहीं सकेगा। हम लोग देखा है, हमको लग रहा हूँ ये हमको बोलने का उचित नहीं, जो बीजेपी का अंदरूनी मैटर है। जो कल भी देख रहा था हम कुछ मीडिया में, आपको बीजेपी के नेता आपको कैंडिडेट के विरुद्ध में, जो बीजेपी का कैंडिडेट के विरुद्ध में आपका मीडिया में वक्तव्य रखा था, तो इस सबको लेके चलने नहीं सका लग रहा है हमको। जो बीजेपी का अंदर में जितना नेतृत्व है उसको लेके वो चलने नहीं सका, नहीं तो नेतृत्व उसका साथ में नहीं चला। ये एक तो कमी उसका था। और ये छोड़ के लोग खाली मोदी मोदी कर रहा था आसनसोल के अंदर में, तो मोदी का डेवलपमेंट और ममता दी का डेवलपमेंट को लेके पब्लिक का सामने जा रहा था। तो पश्चिम बंगाल का जनता तो आपको ममता दी का डेवलपमेंट का साथ रहेगा, इसलिए कि हम लोग तो पश्चिम बंगाल का वोटर है और पश्चिम बंगाल का वासी है। तो पश्चिम बंगाल में ममता दी बहुत कुछ किया है, तो उसका समर्थन में जनता था, इसलिए हम लोग को ये सीट का जीत मिला है। बस